Good evening, guys. Welcome to the DPP session of bending stresses in beams. And we are going to cover various numericals on bending stresses. Good evening, Deepak. So everyone is ready? So I hope all of you attended the bending stress lectures on YouTube. सब लोगों ने बेंडिंग स्ट्रेस के YouTube के लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं. Everyone is familiar with the concepts of bending stresses in beams. सबको सवाल बनते हैं. So today we are going to cover various types of numericals of bending stresses in beams. Okay, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग. डिफरेंट वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हम लोग. ऐसे न्यूमेरिकल्स जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं किए होंगे, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे होंगे. ओके, so we are going to learn a lot of new things today. Okay, and those of you who have not joined my Telegram channel, please go and follow this Telegram channel, because whenever I will be taking any class on YouTube or on Unacademy, I will be posting about it on this Telegram channel. मैं जब भी कोई क्लास लूंगा, अनअकैडमी पे हो ये वो क्लास या यूट्यूब पे हो, मैं उसकी लिंक हमेशा इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा. तो आपको कभी भी कोई भी क्लास आप कभी मिस नहीं करोगे. ओके, चलो. So shall we start with the problems? प्रॉब्लम स्टार्ट करें. Yes, everyone is excited. अच्छा, चलो 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 चलो. Okay, okay, okay. So let's start with the problems of bending stresses in beams. Okay. So this is the first question in front of you. A beam of unsymmetrical I section made of structural steel has an overall depth of 300 mm. If the plane stresses developed at top and bottom of the beam are 120 megapascal and 300 megapascal, then what is the depth of neutral axis from the top of the beam? Is the problem clear to everyone? आपके पास एक अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है, ठीक है. उसका आपको ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है 300 mm. ओके, और आपको टॉप और बॉटम के स्ट्रेसेस पता है 120 एंड 300, एंड यू नीड टू फाइंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम. न्यूट्रल एक्सिस को यहां लोकेट करना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू लोकेट द न्यूट्रल एक्सिस? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बेटा? In order to solve this problem, we need to draw the distribution of bending stress at the top and bottom. ठीक है, तो टॉप से बॉटम तक बेंडिंग स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाओ एंड यू विल गेट द आंसर. बेंडिंग स्ट्रेस टॉप से बॉटम तक कैसे वैरी करेंगी? हाउ द बेंडिंग स्ट्रेस विल वैरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम? हाउ द बेंडिंग स्ट्रेस विल वैरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम? It will vary linearly, right? It will vary linearly. तो टॉप पे 120 मेगापास्कल है, बॉटम पे 300 मेगापास्कल है, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट विल वेरी लीनियरली लाइक दिस. ठीक है, ये है 120 और ये है 300. सो दिस मस्ट बी द न्यूट्रल एक्सिस. ये हो गया अपना न्यूट्रल एक्सिस, राइट? नाउ वी नीड टू लोकेट द न्यूट्रल एक्सिस. और कहां से लोकेट करना है? कहां से लोकेट करना है? टॉप से लोकेट करना है. सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज y. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 300 minus y. So I can write y by 120 equal to 300 minus y by 300. So from here, what value of y are you getting? कितना आ रहा है? y कितना आ रहा है? y कितना आ रहा है? y कितना आ रहा है? How much are you getting? What is the value of y? क्या हो गया?
85.71 ओके सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, द वैल्यूज आर नॉट मैचिंग, यहाँ ऑप्शंस जो है वो गलत दिए हुए हैं, कोई एक वैल्यू जो है शायद गलत हो गई है, ओके बट डोंट वरी, डोंट वरी, our answer is correct, 85.71 mm, this will be from the top, ठीक है, तो टॉप से 85.71 mm, तो बॉटम से कितना हो जाएगा बेटा 300 माइनस आंसर, इट विल बी 214.28 mm फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, तो टॉप से ज्यादा क्लोज है, बॉटम से दूर है, ओके, so this question is clear, आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, you will find a lot of questions like this, okay, okay, so shall we move on to the next question, next question की तरफ चलें, okay, so let's solve this problem. A thin high strength steel ruler having thickness t equal to 4.5 mm and length l equals to 1.2 meter is bent by couples m naught into a circular arc subtending an angle of alpha equals to 40 degree. What is the maximum bending stress in the ruler? एक रूलर है, स्टील का रूलर है, ठीक है, स्टील का रूलर मतलब समझते हो ना, रूलर मींस द स्केल, स्टील स्केल, एवरीवन माइट हैव यूज्ड इट, राइट, सो वी हैव बेंट द स्टील रूलर इनटू अ सर्कुलर आर्क, ओके, वी हैव बेंट द स्टील रूलर इनटू अ सर्कुलर आर्क and it is subtending an angle of 40 degree at the center. We need to find what will be the maximum bending stress. Now beta, what did I tell you about calculation of bending stress? मैंने आपको bending stress के बारे में बताया था that in order to calculate bending stress you either need the bending moment or you need the radius of curvature. Can we calculate the bending moment here? क्या यहाँ bending moment निकाल सकते हैं? Can we calculate the bending moment here? No, we can't calculate the bending moment here. But can we calculate the radius of curvature here? क्या यहाँ radius of curvature निकाल सकते हैं? Yes, we can calculate the radius of curvature. We can find the radius of curvature here. So beta, here in this problem, you first calculate the radius of curvature and then you find the bending stress. ठीक है? तो अगर आपको bending stress चाहिए तो either you need bending moment or you need radius of curvature, okay, so this will be r, so beta what I can write, can I write l equals to r alpha, मैं ऐसा लिख सकता हूं l equals to r alpha, right, arc length का equation, now I know l, it is 1200 mm and I have the value of alpha, what is alpha, 40 degree, okay, so beta I need to put it in radians, रेडियंस में पुट करना पड़ेगा, याद रखो यहाँ अल्फा है, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आर, यहाँ अल्फा किस में रखोगे, रेडियंस में रखोगे, ठीक है, सो 1200 into 120 divided by 40 pi, what you are getting, r कितना आ रहा है, what you are getting 1718.87 mm. So this is the radius of curvature. Once you get radius of curvature, can we calculate sigma max using this equation, E into y max by r? We can use this. Now what is E? It is 200 gigapascal. So 200 into 10 to the power 3. What will be y max? Y max कितना होगा? Half of thickness, right? Y max will be half of thickness. So it will be 2.25 divided by r. So r will be how much? R will be 1718.87. So what is sigma max? What is sigma max? 200 into 10 to the power 3 into 2.25 divided by 1718.87, 261.8 megapascal. 261.8 megapascal.
So is this clear to everyone? ये क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये वाला सबको क्लियर है? ठीक है, ओके ओके। Now this next question is really interesting. Okay, read the question. Beam A is simply supported at its ends and carries a UDL of intensity W over its entire length. It is made of steel having Young's modulus E. Then beam B is a cantilever and carries a UDL of intensity W by 4 over its entire length. And it is made of brass having Young's modulus E by 2. The beams have same length and same area. If sigma A and sigma B denote the maximum bending stress developed in beams A and B, then which one of the following is correct? Sigma A by sigma B will be equal to 1. Sigma A by sigma B will be less than 1. Sigma A by sigma B will be greater than 1. Or sigma A by sigma B depends on the shape of cross section. So which one of these will be the correct answer? बहुत ध्यान से बनाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन will give the correct answer to this. क्या आ रहा है आप लोगों का? सिग्मा A by sigma B equal to 1, सिग्मा A by sigma B less than 1, greater than 1 और D? What you guys are getting? C, D, A, B. Okay, I am getting different answers from everyone. I am getting different answers from everyone. Some people are saying A, some people are saying B, some people are saying C, some people are even saying D. So what is the correct answer to this question? Let's understand. First of all, we have different beams. One is a cantilever, one is a simply supported. So the loading is changed. Okay. Second thing that is changed is material. So beta, sabse pehle to tell me one thing. If one is steel and other is brass, what will be the difference in the bending stresses? एक स्टील है और दूसरा ब्रास है, तो बेंडिंग स्ट्रेस किसमें ज्यादा आएगा? Yes, very good, Utkarsh. There will be no difference between the bending stress. It doesn't depend upon the material. Okay, so it doesn't matter whether you are changing the material or whether the materials are same. ठीक है, तो यहाँ मटेरियल का कोई रोल नहीं है। तो ये मटेरियल के बारे में जो आपको जानकारी दी गई है, दैट एक का यंग्स मॉड्यूलस E है, दूसरे का E by 2 है, ये तो मैटर नहीं करता। ओके, दिस डज नॉट मैटर। ओके, फिर क्या बोल रहा है? द टू बीम्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया। तो दोनों की लेंथ बराबर है, एरिया बराबर है। ठीक है, सिग्मा ए एंड सिग्मा बी आर द बेंडिंग स्ट्रेसेस। नाउ व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन सिग्मा ए एंड सिग्मा बी? सो व्हाट रिलेशंस आर यू गेटिंग? व्हाट रिलेशन आर यू गेटिंग? Yeah, some people are saying A is correct, some people are saying B is correct, some people are saying C is correct, but the correct answer is D. The correct answer is D. Why the correct answer is D? Because can you calculate the bending stress without knowing what is the cross section? You only have the equal area. दोनों का एरिया बराबर है बोल रहा है, दोनों का एरिया बराबर बोल रहा है, लेकिन आपको पता है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन है ए का, कौन सा क्रॉस सेक्शन है बी का?
वेदर दे आर सर्कुलर रेक्टेंगुलर, एक का सर्कुलर रख दूंगा दूसरे का रेक्टेंगुलर रख दूंगा तो क्या अलग सेम आंसर आएगा? बेटा बेंडिंग स्ट्रेस will depend upon the shape also. Understand, sigma by y equals to m by I. So in this equation, I is moment of inertia which depends upon the shape as well as the size. शेप पे भी डिपेंड करेगा, साइज पे भी डिपेंड करेगा. शेप मींस वेदर इट इज सर्कुलर और रेक्टेंगुलर. ओके, सो बेटा दैट्स व्हाई हियर वी कैन नॉट से what will be the relation between sigma a and sigma b. They are only saying that both the beams have same area, but वो एरिया कैसा है, एक का रेक्टेंगुलर दूसरे का सर्कुलर, एक का सर्कुलर दूसरे का रेक्टेंगुलर, दोनों का सर्कुलर दोनों का रेक्टेंगुलर, एक का आई सेक्शन दूसरे का टी सेक्शन, ये चीज तो दिया नहीं है ना. यस Yes, is it clear? Is it clear? So that's why we cannot say what will be the relation between sigma A and sigma B. अगर वो ये बोलते हैं कि दोनों का moment of inertia same है, if the moment of inertia is same, then we can find the relation between sigma A and sigma B, right? अगर moment of inertia same होता तो हम कुछ relation निकाल लेते, लेकिन moment of inertia के बारे में कुछ बताया ही नहीं है. They have only said that they both the areas are same. Okay, clear है? Clear है? Is it clear? Yes, very good, very good, very good. बेटा मयूर आप अभी तक क्वेश्चन ही नहीं समझे हो, so I want you to read the question again. ठीक है, after this lecture ends प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया है. आप कहाँ टेंशन और कंप्रेशन की बात कर रहे हो, यहाँ दो अलग अलग बीम्स के स्ट्रेस को कंपेयर किया जा रहा है, आप टेंशन और कंप्रेशन में कहां लगे हुए हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. यस, ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. A copper wire having diameter d equal to 3 mm is bent into a circle and held with the ends just touching. मतलब मेरे पास एक वायर थी, उसको मैंने ऐसे मोड़ के सर्कल बना दिया है और दोनों एंड जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. ओके, if the maximum strain in the copper is 0.0024, what is the shortest length of wire that can be used? In this question they have not given you the stress, they have given you the maximum applicable strain. तो बेटा strain क्या होगा, strain will be equal to sigma by E. So whatever equation of sigma you have, divided by E and you will get strain. है कि नहीं, है कि नहीं. अब बेटा आपको लेंथ निकालनी है, कितनी हो सकती है. So in order to calculate what will be the permissible value of length, can I calculate the permissible value of radius of curvature? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के फिर एल निकाल सकता हूं. यस, so in order to calculate the radius of curvature, I need first the equation between epsilon and r. So what will be the equation beta? Can I write sigma equal to, यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम होगा, ठीक है, मेरे को एप्सिलॉन मैक्सिमम चाहिए, तो ये सिग्मा मैक्सिमम होगा. तो कैन आई राइट सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू E इंटू वाई मैक्सिमम बाय आर. तो एप्सिलॉन मैक्सिमम क्या हो गया बेटा, एप्सिलॉन मैक्सिमम इज y maximum by r. Now put the value and calculate the value of r. अब यहाँ पे एप्सिलॉन मैक्स और y मैक्स का रखो वैल्यू एंड कैलकुलेट r. r कितना होगा, व्हाट इज एप्सिलॉन मैक्स, 0.0024. व्हाट विल बी y मैक्स, y मैक्स कितना होगा बेटा, y मैक्स कितना होगा, y मैक्स विल बी 1.5 mm, है ना. डायामीटर इज 3 mm, क्रॉस सेक्शन का डायामीटर 3 mm है, तो y मैक्स कितना होगा 1.5. सो फ्रॉम हियर व्हाट इज r, r कितना आ रहा है, r कितना आ रहा है 625 mm
Now what will be R? Can I write L equals to 2 pi R? Can I write L equals to 2 pi R? Can I write L equals to 2 pi R? So from here, I will get the value of L in meter. कितना आ जाएगा? 3.92 मीटर. .92 meter. Yes, very good, very good. So beta, maximum length of this wire can be 3.92 meters. अच्छा क्वेश्चन था. यस. तो बेटा ये एप्सिलॉन की इक्वेशन याद रखना. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इक्वल्स टू y बाय r. ओके, एप्सिलॉन इज इक्वल टू y बाय r. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. ओके 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 ओके. So this is the next question in front of you. A cantilever beam is loaded as shown in figure. It is of circular section of radius 100 mm having two symmetrically placed holes as shown in figure. Maximum bending stress in the cross section is. अब बेटा ये interesting question है. ये interesting question है. इस question में बाकी सब बड़े आराम से निकल जाएगा. You will be able to find everything very easily. The real calculation will be of moment of inertia. है कि नहीं? In order to calculate maximum bending stress, what equation are we going to use? Sigma max equals to m into y maximum divided by I. तो m तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा ना. Where will you get the maximum bending moment बेटा? Where will you get the maximum bending moment? Maximum bending moment कहाँ आएगा? Maximum bending moment कहाँ आएगा? फिक्स्ड एंड पे आएगा. 100 into 1.5. सो बेटा बेंडिंग मोमेंट तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा. y मैक्सिमम क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी y मैक्सिमम? व्हाट विल बी y मैक्सिमम? व्हाट विल बी y मैक्सिमम? y मैक्सिमम विल बी इक्वल टू रेडियस 100 mm, है ना. बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी नीड टू फाइंड. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैसे निकलेगा? वी हैव अ सर्कल जिसमें there are two circular holes. So what do we need to do? We need to subtract the moment of inertia of these holes from this circle, है ना. जो बड़ा सर्कल है उसमें से ये होल्स जो है, छोटे सर्कल्स जो है, उनको माइनस करना पड़ेगा. नाउ अंडरस्टैंड बेटा, when you will calculate the moment of inertia of the small circle, you will get it with respect to this axis. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मिलेगा, बट आपको निकालना इस एक्सिस के अबाउट है. तो यू विल हैव टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. यू विल हैव टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन क्या हो जाएगी? आई विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिगर सर्कल विल बी व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग सर्कल विल बी इक्वल टू व्हाट? कितना होता है? कितना हो जाएगा? pi r to the power 4 by 4. okay, minus 2 into moment of inertia of one circle. ठीक है, ऐसे दो सर्कल हैं, so that's why I am multiplying with 2. okay, moment of inertia of hole, there are two holes, multiply by 2. now moment of inertia of this circle, moment of inertia of this circle about its सेंट्रॉइड, इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसका रेडियस है r by 3, so it will be pi r by 3 whole to the power 4 by 4. but I need the moment of inertia about neutral axis. I have to apply parallel axis theorem. तो ये हो जाएगा बेटा कितना? एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट? पाई r by 3 होल स्क्वायर इनटू डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से इस एक्सिस के बीच का? r by 2. now put the value of r.
and you will get I. कितना आ रहा है I? R is 100. Seven six 48420 6.33. 76484206.33 mm. अच्छा सॉरी, डिस्टेंस का भी स्क्वायर होगा ना, सॉरी एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, हाँ एरिया डिस्टेंस का भी स्क्वायर होगा, सॉरी 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 सॉरी, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100⁴, ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर, 59147269.1, 59147269.1. Is this the value? Is this the value? इतना आ रहा है क्या? 59147269.1 mm to the power 4. Yes, 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 yes. So now beta just put the values in the equation. Sigma max will be equal to m. M कितना हो जाएगा? 100 into 10 to the power 3 multiplied by 1500, है ना? This will be m. Y max will be 100 divided by I. I is 59147269.1. So how much is sigma max? How much is sigma max? कितना आ रहा है? 253.6 megapascal. Is it 253.6 megapascal? Yes, very good, very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So the answer is 253.6 megapascal, right? Very good. बहुत बढ़िया, very good, very good. चलो. विवेक इज सेइंग डीपीपी से गेट में क्वेश्चन जरूर आएगा. आई होप आ जाए ताकि आप लोगों का भला हो, है ना, ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले. तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्रॉस सेक्शन में थोड़ा चेंजेस थे, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकेंड, सो सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन का डायग्राम जो है ये ठीक से नहीं बना है. ओके, तो मैं डायग्राम जो है वो बना देता हूं खुद से. ओके, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम माई सेल्फ. यहाँ पे डायग्राम जो है वो ठीक से आया नहीं. अभी क्लियर है? नाउ इज द डायग्राम क्लियर? नाउ कैन यू अंडरस्टैंड?
Yes, I think now you can understand. Yes. तो बेटा a simply supported beam of length 3L is subjected to loading as shown. P की वैल्यू दी है, लेंथ की वैल्यू दी है, E दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है. We need to calculate the bending stress. We need to calculate the bending stress at point A, located at the top surface. ठीक है, A पॉइंट पे टॉप सरफेस पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है बेटा. ठीक है, सो टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. वो इंटरनल हिंज नहीं है मेरे भाई, वो पॉइंट ए को मेंशन करने के लिए बोला बना है. क्या कर रहे हो यार, क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरनल हिंज लिखा है क्या? हाँ, एग्जाम में ऐसे तुम कॉल करके पूछवाओगे क्या आईआईटी को कि सर ये इंटरनल हिंज दिया है क्या? हाँ, क्वेश्चन को पढ़ के नहीं पता लगा पा रहे हो आप? वहां पे वो मार्क किया हुआ है आपको वो पॉइंट दिखाने के लिए, इंटरनल हिंज नहीं दिया है. क्या आ रहा है? कम ऑन, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. बेटा ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है मेरे भाई नवनीत. तुम लोग क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? हाँ, आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अभी तक यही नहीं पता है कि गेट में क्वेश्चन किस टाइप से आता है. हाँ, ये गेट का ही क्वेश्चन है और ये गेट के ही वर्ड्स हैं. बेटा अगर आप अभी तक गेट के क्वेश्चंस नहीं देखे हो तो बेटा ये बहुत दुख की बात है. आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे आपको यही नहीं पता है अभी तक. So beta, first of all, you need to calculate the bending moment at this point, and in order to calculate the bending moment, I need the reactions. अब यहाँ पे reactions किस टाइप से आएंगे? बहुत आसान है. यहाँ पे ये P और ये P जो है ये equal and opposite है, तो ये दोनों मिलके एक कपल बना रहे हैं. तो उस कपल को बैलेंस करने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट कपल रिएक्शंस बनाएंगे, है ना, कुछ इस तरीके से. अब इस कपल की वैल्यू कितनी है? पीएल है, तो रिएक्शंस के कपल की वैल्यू भी होनी चाहिए पीएल. तो पीएल डिवाइडेड बाय 3एल कितना आएगा? यहां पे कितना आएगा? ये कितना होगा? अरे मेरे भाई कितना आएगा? P बाय 3 आएगा. वेरी गुड. पीएल डिवाइडेड बाय 3एल, तो ये हो जाएगा P बाय 3, ये हो जाएगा P बाय 3. यू कैन टेक द मोमेंट एट एनी पॉइंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिएक्शन. ओके, नाउ फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट ए. तो ए पे बेंडिंग मोमेंट अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा -P/3 इंटू 1.5L एंड ये हो जाएगा +P/L/2. तो ये कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है. आर वी गेटिंग 0? सो सिग्मा एट ए विल ऑल्सो बी 0, राइट? सिग्मा एट ए क्या होगा? 0 होगा ना. सो यस, 0 आ रहा है ना. बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 आ रहा है. -P/3 इंटू 1.5L प्लस P/L/2. ठीक है, तो ये -0.5PL, ये +0.5PL. सो बेटा 0. So if there is no bending moment, there will be no bending stress, right? हाँ कि ना?
Yes. चलो, very good. So shall we move on to the next question? Next question की तरफ चलें. Okay. So beta, this is the next question in front of you, a very interesting question, and we have solved this question in yesterday's YouTube class. कल की YouTube क्लास में मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी. Remember? The reinforced cement concrete footing shown in figure is loaded with a concentrated load at point P so as to produce maximum bending stress of 10 kilonewton per meter square and 15 kilonewton per meter square due to eccentricities about x-axis and y-axis. If the direct stress due to loading is 17.5, then the resultant stress at corner B will be. अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस, यू जस्ट नीड टू सी वेदर द स्ट्रेसेस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है कि नहीं? आपको बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना है. अब बेटा यहाँ पे ये जो स्ट्रेस है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस है, वो तो नेगेटिव ही होगा, दैट विल बी कंप्रेसिव. ये तो नेगेटिव ही होगा, बट ये दोनों स्ट्रेस 10 और 15 ये पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, ये देखना है. ठीक है. सो बेटा, हाउ वी विल सी दैट? मैंने कल क्या ट्रिक बताई थी? रिमेंबर द ट्रिक. व्हाट वाज द ट्रिक? क्या ट्रिक थी? रिमेंबर द ट्रिक. सो द क्वाड्रेंट वेयर द लोड इज एक्टिंग विल बी द नेगेटिव क्वाड्रेंट. जिस क्वाड्रेंट में लोड लग रहा है वो हो गया आपका नेगेटिव, तो -x -y, और ये दोनों हो गए पॉजिटिव, +x और +y. ठीक है. तो अब बेटा यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव दोनों स्ट्रेसेस नेगेटिव रहेंगे. ठीक है. यहाँ पे एक स्ट्रेस पॉजिटिव, एक स्ट्रेस नेगेटिव रहेगा. आपको बी पे निकालना है. तो बी पे कौन सा स्ट्रेस पॉजिटिव होगा? एक्स डिस्टेंस किस में आएगा? एक्स डिस्टेंस किस में आएगा? एक्स डिस्टेंस किस में आएगा? एक्स डिस्टेंस कितने आएगा? वाई एक्सिस के अबाउट जो बेंडिंग बन रही है उसमें एक्स आएगा ना. यस, एम वाई. तो एम वाई कौन सा है बेटा? एम वाई की वजह से स्ट्रेस कौन सा है? एम वाई की वजह से स्ट्रेस कौन सा है? 15 है ना. तो यहाँ बेटा 15 विल बी पॉजिटिव और y नेगेटिव है. तो y मतलब x के अबाउट एसेंट्रिसिटी, तो बेटा ये हो जाएगा -10. ठीक है. यहाँ पे दोनों नेगेटिव रहेंगे, -15 -10. यहाँ दोनों पॉजिटिव रहेंगे, +15 +10, और यहाँ पे ये हो जाएगा -15 एंड +10. तो बेटा अब मेरे को पता है 15 पॉजिटिव 10 नेगेटिव और ये भी नेगेटिव. तो सिग्मा एट डी विल बी इक्वल टू व्हाट? 15 -10 -17.5. So what is sigma b? What is sigma b? 15 -10 -17.5. कितना आ रहा है? -12.5, यानी कि 12.5 कंप्रेसिव, 12.5 कंप्रेसिव, 12.5 कंप्रेसिव. Is this clear? Is this clear? Is this clear? Yes. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. सो बेटा रिमेंबर दिस ट्रिक. यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ यू अप्लाई दिस ट्रिक, है ना. अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे कौन सा टेंशन कौन सा कंप्रेशन. ठीक है. बिना इस ट्रिक के सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी, है ना. चलो, now let's move on to the next topic, next question. A cast iron link is 40 mm wide and 200 mm high by 500 mm long. The allowable stresses are 40 megapascal in tension, 80 megapascal in compression. Compute the largest compressive load that can be applied to the end located 150 mm above the link.
तो बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन एंड कंप्रेशन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन इन कंप्रेशन की इक्वेशन बनाने की पड़ेगी। ठीक है, बनाओ सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन इन कंप्रेशन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी। So beta in this question we will have a force P and a moment. Moment की वैल्यू कितनी होगी? What will be the moment? What will be the moment? Moment will be P into what is this distance? This distance is how much? 50 mm. Yes, 150 mm above the bottom बोल रहा है, तो ये हो गया आपका 50 mm. ओके, तो यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द इक्वेशन? P बाय एरिया कितना है इसका? 40 बाय 200. P बाय 40 इंटू 200. ओके, एंड प्लस m कितना हो जाएगा? ये P इंटू 50 इंटू वाई मैक्स यानी 100 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 200 क्यूब बाय 12, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? कितना? 40 मेगा पास्कल। ठीक है, तो यहां से यू विल गेट अ पी। ठीक है, सिमिलरली सिग्मा मैक्स इन कंप्रेशन कितना हो जाएगा? सेम इक्वेशन, बट यहां पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो P इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, 40 into 200 cube by 12, and this will be how much? कंप्रेशन में 80 मेगा पास्कल। ओके, तो यहां से एक और P की वैल्यू आएगी। ओके, सो वन वैल्यू ऑफ P आई कैन कैलकुलेट बेस्ड ऑन मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, वन वैल्यू ऑफ P आई कैन कैलकुलेट बेस्ड ऑन मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो बेटा दोनों वैल्यू मेरे को निकाल के बता दो कितना आ रहा है। Tell me what will be the value from both the cases. In the first case, P will be 128,000, है ना? ओ सॉरी सॉरी, लोड कंप्रेसिव है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, लोड कंप्रेसिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव होगा। सॉरी, माय मिस्टेक। तो फर्स्ट केस में आ रहा है 64123440। ठीक है, एंड सेकेंड केस में 128,000, है ना? एक केस में 64,4 बार 0, एक केस में 128,000। सो व्हाट विल बी द आंसर बेटा? सेफ विल बी मिनिमम ऑफ 64,000 एंड 128,000। तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है बेटा? 128,000 और 128 किलो न्यूटन। इज इट क्लियर? कहाँ है यार ये आंसर, क्यों नहीं है? कुछ गड़बड़ किए हैं क्या?
हैव वी डन एनी मिस्टेक? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? हैव वी मेड एनी मिस्टेक? P upon area 40/200, फिर ये P इंटू 50, y मैक्सिमम 100, 40 इंटू 200 क्यूब। वन 50 mm फ्रॉम द बॉटम बोला है मेरे भाई, पढ़ लो थोड़ा अच्छे से। 150 mm फ्रॉम द अबव द बॉटम मतलब 50 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस होगा ना। क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं तुम लोग, सीधे जंप कर दोगे। 128 किलो न्यूटन विल बी द आंसर। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। 128 किलो न्यूटन होगा आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अगर मैं टेंशन के हिसाब से करूं तो आंसर विल बी 640 किलो न्यूटन, कंप्रेशन के हिसाब से 128 किलो न्यूटन। सो वट एवर इज द मिनिमम वी विल कंसिडर दैट। ओके, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा हम उसके हिसाब से इसको डिजाइन करेंगे। So 128 किलो न्यूटन विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? यस, चलो, वेरी गुड। That's all for today's DPP beta. So this was the bending stresses in beams. Okay. अरे मेरे भाई Ashwin, you please go and watch that lecture again. ठीक है, P is compressive. So whether I am calculating tensile stress or compressive stress, इसका साइन चेंज होगा क्या? साइन चेंज होगा क्या इसका? I have already told this in yesterday's YouTube class. Don't you guys understand? एक्सियल स्ट्रेस टेंसाइल हो जाएगा क्या अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस निकाल रहा हूं तो? एक्सियल लोड विल बिकम टेंसाइल। विदाउट थिंकिंग यू गाइस आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बिना सोचे समझे बस उसको कुछ भी कर रहे। यहाँ टेंशन देखा तो इसको पॉजिटिव कर दो, इसको भी पॉजिटिव कर दो। टेंशन का मतलब तो पॉजिटिव होता है। दैट इज द लॉजिक यू गाइस आर यूजिंग। इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं उसके बाद इस तरीके के सवाल। एनीवे, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज डीपीपी सेशन। ठीक है, ये 256 आ रहा है। कौन सा 256 आ रहा है? कौन सा 256 आ रहा है? अरे मेरे भाई, कौन सा 256 आ रहा है? पता नहीं तुम कौन सा निकाल रहे हो मेरे भाई, लेकिन मेरा 256 नहीं आ रहा है, मेरा 640 आ रहा है। ठीक है, चलो बेटा, those of you have still not joined the telegram channel, go and join the telegram channel right now. ठीक है, 256 किसका आ रहा है यार? कौन सा, किसका सोल्यूशन 256 आ रहा है? अच्छा, सॉरी सॉरी। ये सेकंड वाले का 256 आ रहा है क्या?
यस, सेकंड वाले का 256 आ रहा है ना, सेकंड वाले का 256 आ रहा है। यस 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 यस। फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले का 640 आ रहा है, सेकंड वाले का 256 आ रहा है, so it will be 256 kilonewton. Sorry, the answer was right. A is the answer, है कि नहीं? A will be the answer, 256 kilonewton. ठीक है? Yes. चलो, okay, so we will be having these kind of DPP session for every topic. Okay, so just keep following the Telegram channel for the notification. Okay, all right, so I will see you then at 7:30. Okay, I'll see you at 7:30 p.m. Bye bye, take care. Bye everyone, take care, bye bye, bye bye, bye bye. जी।